Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Good morning, church. Praise the name of the Lord God Almighty. He is worthy of praise. Hallelujah. Welcome you all to Rivers of Life Church. The Lord loves you and His grace is enough for you. Rivers of Life कलिसिया में आप सबकी स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो आपको आशीषित करेगा। Hallelujah. So we are in our series of the humble will be exalted. हम अपने शिक्षण में हैं कि जो नम्र हैं वो ऊंचा किया जाएगा। You know, I want to tell you, no matter how much you try to exalt yourself, you are going to put yourself lower and lower. And if at all you come to a place where you think you have reached the heights of life, there is all possibility that you will have the great fall. Like Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king's men, and even you could not put yourself together again. So be careful. For God's word says, the humble will be exalted, but the proud will be humbled. And that humbled means to be humiliated. Hallelujah. So let's pray. Father, I thank you and I praise you. I give you the glory. I thank you this morning for you are wonderful. Thank you for your grace upon our lives. And thank you for your word that guides us. We open up our hearts and our minds and our ears to receive what you have for us this day. पिता धन्यवाद देता यीशु मसीह के नाम में तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी अनुग्रह और तेरी वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है, जिससे कि प्रभु हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं और वो बना रहता है यीशु के नाम में। आमेन। Praise God. Thank you, Jesus. Put a smile on your face and say, Father, speak to me. अपने मुंह पे मुस्कान डालो और कहो, पिता मुझसे बातें कर। Hallelujah. But don't be like a disobedient child whose father is always speaking to him and is never obeying. लेकिन उस अज्ञाकारी बालक की तरह न हो जिसका पिता लगातार उससे बातें करते हैं लेकिन वो पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं। That's pride. उसे घमंड कहता है। Don't be Humpty Dumpty. Be a child of God. तो आप Humpty Dumpty न बनो, एक अंडे की तरह न बनो, आप परमेश्वर के पुत्र बनो, क्योंकि जब अंडा टूट जाती है तो सारी दुनिया की सामर्थ उसको फिर से एक नहीं बना सकता है। So that is exactly what happens to people of pride. They are broken like a raw egg which cannot be restored back. तो जो लोग घमंडी होता है तो वो एक अंडे की तरह, एक कच्चा अंडे की तरह टूट जाता है। तो नम्र होने में ही आशीष है। So to stay humble is a blessing. Hallelujah. Praise God. There are a few things that I want to address, and I believe that we will be blessed. कुछ बातें हम बताना चाहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप आशीषित होंगे। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. You're wonderful. Last week we saw where the Pharisee comes and boasted himself. He boasts about his self-righteousness. He boasts about himself being religious. पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि एक फारिसी आता है प्रार्थना करने के लिए और वो अपने आप के धार्मिक कामों में वो घमंड करता है। वो अपने अच्छे कामों में घमंड करता है और वो परमेश्वर से
लोगों के साथ में अपनी तुलना करता है कि मैं उस जगतदार के जैसे नहीं हूं, मैं औरों की तरह नहीं हूं, मैं सभी से हटकर हूं प्रभु, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत धर्मी हूं। So this Pharisee comes to the Lord and he says, I am not like the other people. I am not like that tax collector. I am righteous. He's speaking about a self-righteousness. वो अपने स्वयं की धार्मिकता के बारे में जिक्र कर रहा है परमेश्वर के सामने। And the Bible says that the righteousness of man, the self-righteousness of man is like stinking rags. और बाइबल कहता है तो ये व्यक्ति अपने स्वयं की धार्मिकता के जिक्र कर रहा है, उसमें घमंड कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता गंदी चिंदियों की तरह है, गंदी चिंदियों की तरह। परमेश्वर जो घमंड करते हैं उसका वो गना करता है। God resists the proud. Hallelujah. So this Pharisee speaks about his tidings. I know many people take pride in giving their tithes and they want everyone to know that they are tithers. But they better go to check, are they really reaping the benefits of tithing? See, tithing is an issue between you and God. You don't need to make a publicity. Yeah, you can testify. But don't boast that you are a tither. Just like this person comes and says, I give tithes of all that I possess. And do you know that his prayer goes unanswered? I fast twice a week. This fasting is more a curse than a blessing in the body of Christ today. So much of pride, as if the blessings that they get from God is because of their fasting. And in fact, they instruct people to do fasting, and the Bible has no direct command about fasting. In fact, Jesus was against that act of fasting. That's true. तो हम देखते हैं कि जो अपने कामों में, अपने धार्मिक कामों में घमंड करते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता नहीं है। तो यहां पर फारसी कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं। अब ये उपवास करना परमेश्वर के कलीसिया में आशीष से अधिक श्राप बन चुका है। वो घमंड करते हैं कि मैं उपवास करता हूं, आज मेरा उपवास है, सबको बताना चाहता है कि आज मेरा उपवास है। अगर कोई पूछता नहीं तो भी बोलेगा मेरा उपवास है। पास्टर आपको मालूम है मैं बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन उपवास करता हूं। अच्छी बात है, लेकिन तेरे उपवास करने से किसी भूखे का पेट भरता है क्या? तो वो अपने उपवास में घमंड करते हैं और उसे ऐसा लगता है कि हमारे उपवास के कारण परमेश्वर को हमें आशीष देना है। ये घमंड है, ये घमंड है। और लोगों को सिखाता भी है घमंडी बनने के लिए कि तुम उपवास करो, तुम उपवास करके प्रार्थना करो। ये घमंड है। वास्तव में तो यीशु मसीह ने उपवास का विरोध किया है। अगर तुम एक प्रचारक हो, तुम बाइबल के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए
बाइबल उपवास के बारे में क्या कहता है? फिर वो कहता है कि मैं अपने दशांश देता हूं, सभी चीजों का दशांश देता हूं। ये दूसरे घमंड है। बहुत सारे लोग अपने दशांश देने में घमंड है, लेकिन मैं कहता हूं आप जरा परख के देखो कि तेरे दशांश देने से तेरी लाभ हुई कि नहीं। अगर लाभ नहीं होती है तो उस दशांश से घमंड को अलग करो और नम्रता से अपने दशांश दो। There is a blessing that is connected with your tithing and offering. But when pride gets connected to your tithing and offering, it's not a blessing, it becomes a curse. तुम्हारे दशांश और भेंट देने से आशीष जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तुम्हारे दशांश और भेंट देने से घमंड जुड़ा है तो वो तुम्हारी आशीष के लिए नहीं, वो श्राप बन जाती है। तुम किस बात के घमंड करते हो? What are you proud about giving your tithes and offerings? Isn't it that the Lord gives you strength to earn wealth? क्या ये सच नहीं है कि प्रभु तुम्हें बल देता है धन कमाने के लिए? तो घमंड किस बात की है? जो तू दे रहा है वो भी परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम उसके आदर करते हो। तो बैंड बजा के बताने की जरूरत नहीं है। You don't need to blow the trumpet to tell the people that you are a tither. तुम्हें तूरी फूकने की जरूरत नहीं है कि मैं दशांश, क्योंकि वो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में। But I want to share with you a secret in just a short moment. If you are to marry someone, marry a title. अगर तुम किसी से शादी करना चाहता हो तो दशांश देने वाले से शादी करो, because blessing is going to fall. Marry someone who is humble, because humbleness will cause the blessing of God to rest upon your marriage life and your family. अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो उस व्यक्ति से विवाह करो जो अपने दशांश और भेंट देने से परमेश्वर की आदर करता है, क्योंकि तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी न हो। अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो एक नम्र व्यक्ति से विवाह करो, क्योंकि परमेश्वर के आशीष तुम्हारी विवाहित जीवन पर हो। Pride is the cause of downfall. Pride destroys many marriages, many families. घमंड परिवारों को नष्ट कर देता है। घमंड अधिक विवाहित जीवन को नष्ट किया है। You know why divorces happen? It's because of pride. It's because of pride. आप जानते हैं तलाक क्यों होता है? घमंड की वजह से। Why separation takes place? Because of pride. तो पति पत्नी अलग क्यों होते हैं? बच्चे माँ बाप से अलग क्यों होते हैं? उस घमंड से कूट कूट कर भरा हुआ उनके अंदर कि मेरे घमंड को कोई छूना नहीं चाहना है। No one should touch my pride. That pride is so precious. वो घमंड उनके इतने अनमोल है और घमंड के वजह से ही लोगों के जीवन में समस्या आती है। My dear brothers and sisters, we have nothing to boast before God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने घमंड करने के लिए हमारे पास कोई बात ही नहीं है। Hallelujah! Praise God! If you have to boast, then boast in the cross of Jesus Christ. घमंड करना है तो यीशु के क्रूस में घमंड करें। Hallelujah!
Praise God. I would like you to turn to Luke chapter 18 and verse 14. Luke chapter 18 and verse 14. लूक 18वां अध्याय और उसका 14वां वचन. Hallelujah. I feel this is a wonderful scripture to have on your walls. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा वचन है तुम्हारे दीवार पर डालने के लिए. You know, we tend to put scriptures that declares the blessings of God. But do you know that this is something that cancels the blessings of God from manifesting into your life? ये अच्छा वचन है कि आप अपने दीवार पर डालें. हम सबको अच्छा लगता है कि परमेश्वर के जो आशीष है जिन वचनों में लिखा है उन वचनों को अपनी दीवारों पर डालें. लेकिन मैं समझता हूं कि यह वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमने नहीं किया तो जितने आशीष के वचन तुम अपने दीवारों पर डालते हैं वो सारे कैंसिल हो जाते हैं. You can confess it 1,000,000 times, but if you don't follow this one, you are going to fall. Yeah? Faith confession. But this scripture goes along with your faith confession. हम विश्वास के अंगीकार के बात कर रहे हैं, लेकिन ये वचन तुम्हारे विश्वास के अंगीकार के साथ में जाता है. Now you all might be knowing that I am a faith and grace preacher, the full gospel. So listen to me, follow this scripture. आप सभी जानते हैं कि हम विश्वास और अनुग्रह के प्रचारक हों. I believe and I practice. और इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरी बातों को सुनो, और केवल सुनो नहीं, उनके अनुसार करने वाले बनो. Hallelujah. I tell you, this man went down to his house justified rather the other. The one that humbled himself before God and had nothing to boast before God was justified by God. He left the place peacefully. And the Pharisee that was boasting in himself, his religious works, his good works, was unjustified. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. वो सभी जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नम्र किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को नम्र करता है उसे ऊंचा किया जाएगा. Now I like that. You know, we speak about Lord of Scriptures. Whosoever says to this mountain, whosoever says to this mountain, whoever believes and lay hands upon the sick shall be healed. But how many of you have heard this scripture also says, everyone who exalts himself shall be humbled? Come on. Then whoever that may be, it might be you, it may be your pastor, it may be anyone. If you dare to exalt yourself and boast before man and God, you shall become a Humpty Dumpty. Right? Go back to nursery. हम सभी इन वचनों को सुना है. जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और दुष्टात्मा, या बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, यीशु के नाम में दुष्टात्माएं निकालेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे. हालेलुया. अगर कोई जहरीले पदार्थ पी तो उसे हानि नहीं होगी. हम ये भी सुनते हैं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे
कि यहां से उठ और समुद्र में गिर, और अपने हृदय में शंका नहीं करेगा लेकिन विश्वास करेगा तो जैसे वो कहेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने ये भी वचन सुना है, जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को नम्र करेगा उसे ऊंचा किया जाएगा। Hallelujah. If you did not hear it, then hear it for me. And let the scripture be put on your wall. Hallelujah. अगर तुमने कभी पहला सुना नहीं तो आज मुझसे सुन ले और इस वचन को आप अपने दीवार पर डालें। For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा दिखाया जाएगा, और जो कोई नम्र होगा उसे ऊंचा किया जाएगा। And remember that word humbled actually means to be humiliated, put to shame. So let me say, everyone who exalts himself shall be put to shame. Come on. Everyone who exalts himself shall be put to shame. Say, if I exalt myself, I will be put to shame. That's true. You confess is a note. You don't need a confession for that. It's the law of God. It's an operation. ये वचन को या इस अंगीकार को हमारे साथ करो। जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वो शर्मिंदा किया जाएगा। अगर मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा तो मैं शर्मिंदा किया जाएगा। मैं जानता है बहुत सारे लोग नहीं कहेंगे ये, लेकिन तुम इसका अंगीकार करे या न करे ये तो होने वाला है, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है जो लगातार काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक द ग्रेविटेशन फोर्स, दिस फोर्स ऑल्सो इज एन ऑपरेशन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे वो काम करता है वैसे ये भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, if I will throw this cap in the air, it's going to come down. Why? Because of the gravitational force. Let's say, if I confess, no, it's not going to come down. Let's see if it stays up there, okay? Here we go. No, it's not going to come down. It came down. Right? It came down. Why? Because of the gravitational force at work. The similar way, those who exalt themselves shall be brought down. उदाहरण के लिए मैं इस कैप को ऊपर डाल रहा हूं और हम कहते हैं कि नीचे नहीं आएगा, तो हम देखते हैं कि अगर नीचे आएगा क्या नहीं। करें हम? नो, नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। उसी तरह से अगर आप अपने आप को ऊंचा करेगा, अगर आप अपने आप में घमंड करेगा, आप अपने कामों में घमंड करेगा या किसी और व्यक्ति में घमंड करेगा, तो आप नीचा लाया जाएगा। यह नियम है और लगातार काम करता है। So the number one thing that you got to deal in your life is pride. तो सबसे पहली बात जो आपको अपने जीवन से निकालना है वो घमंड है। घमंड को निकालो और नम्र हो जाओ। Hallelujah. You may be a child of God. You are a joint heir and co-heir with Christ Jesus. But if you operate in pride, the blessings of God will not operate in your life. Are you getting me?
आप परमेश्वर के संतान हो, आप उसके वारिस हो और यीशु मसीह के साथ में संगी वारिस है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में घमंड को जगा देगा तो परमेश्वर के आशीष तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। You may turn with me to 1 Peter chapter 5. पहले पेत्रस it says, submit to God and resist the devil. Okay, likewise, you younger people, submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissible to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your cares upon him, for he cares for you. Hallelujah. We are reading on verse 5, isn't it? 1 Peter chapter 5 and verse 5. पहले पेत्रस का 5वां अध्याय और 5वां वचन से पढ़ेंगे। 1 Peter, पहले पेत्रस। Likewise, you younger people, submit yourself to your elders. What does, यहां पर कहते हैं जो जवान हैं अपने बुजुर्गों के अधीन हो। जी हां, सब एक दूसरे के अधीन हो और नम्रता के धका रहो। For God resists the proud but gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र को अनुग्रह देता है। Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो और सही समय में वो तुम्हें ऊंचा करेगा। Casting all your cares upon him, for he cares for you. अपने सारे बोझ उसे दे दो क्योंकि उसे तुम्हारा है ख्याल। Hallelujah. Praise God. It says, submit yourself to your elders. What does it mean to submit yourself to your elders? यह कहता है कि बुजुर्गों के अधीन रहो। इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of it? It means to obey your elders in the things of Christ. इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह के बातों में उसके आज्ञा के पालन करो। It means to honor them and respect them. Don't overrule your elders. इसका अर्थ यह है कि उसके आदर करो, उसके सम्मान करो, उसके ऊपर तुम अपने हुकूमत करने की कोशिश मत करो, उन्हें उनके ऊपर शासन मत करो। Yes, all of you be submissive to one another. और फिर कहते हैं सभी एक दूसरे के अधीन हो। And be clothed with humility. और नम्रता से ढके रहो। How many of you know
that it takes humility to submit to one another. You know, some Christians, if someone has dropped their pen and request another to lift up the pen, they will say, why should I carry? Why should I pick it up? It's your pen. Right? Or they would give a deaf ear and pass by. You got to be submissive to each other. You got to be your brother's caretaker. You know, why did Cain commit a murder? Why did Cain murder his brother? Because he was full of pride. He was full of pride. The acceptance of Abel's offering hurt the pride of Cain, which caused him to murder his own brother. मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि अगर किसी के कलम गिर गया और किसी दूसरे मसीह को कहा कि प्लीज वो मुझे उठा दो, तो उसके जो प्राइड है, जो घमंड है, उसको चोट लगती है, बोलते तुम्हारे पेन है, तुम उठा लो। या तो वो एक बहरे कान देकर चले जाएगा जैसे कि मेरे सुना नहीं। अनेक उदाहरण हैं। तुम्हें अपने भाई के रखवाला बनना है, उससे अधिक मैं ये कह सकता हूं तुम्हारे भाई के नौकर बनना है। You should be a servant to your brother, isn't it? Jesus is a servant king. You know, and if you are not having pride in you, even that word servant would not come to your thought. You would say, well, I do it to my brother. But people of pride would say, am I your servant? Am I your servant? And the sad thing, you know, we get to learn this from school teachers at times. This attitude is picked up from school teachers. It's very sad. तो उदाहरण के लिए अगर तुम्हारे किसी का पेन गिर गया और उसने कहा कि मेरे कलम उठा दो, तो अगर तुम्हारे अंदर घमंड है तो बोले मैं तेरा नौकर हूं कि मैं तुम्हारे लिए पेन उठा के दूं, या तो तुम बहरे कान देकर निकल जाएंगे। हमें अपने भाई के, अपने अपने दूसरे विश्वासियों का या सभी का हमें रखवाला होना चाहिए, हमें एक नौकर की तरह होना चाहिए कि हम उसकी सहायता करें। आप जानते हैं कि केन ने एबल का हत्या क्यों की? क्योंकि केन जो है ना घमंड से भरा हुआ था। जब परमेश्वर ने एबल के उस भेंट को स्वीकारा, केन के घमंड को ठेस लगी और उस घमंड के वजह से उसने अपने ही भाई का हत्या की। Jesus was a servant king. He served everyone, irrespective of whom he knew he was. यीशु मसीह सेवकों का राजा है, एक नौकर का राजा है। वो ये जानता था कि वो परमेश्वर है, वो सारे सृष्टि को बनाने वाला है, फिर भी उसने नम्रता से लोगों की सेवा की। जो सबसे छोटा काम माना जाता था, जो सबसे घटिया काम माना जाता था, और वो है पैर धोने की, यीशु मसीह ने वो काम किया। क्योंकि
उसके अंदर घमंड के लिए, गुरूर के लिए कोई स्थान नहीं था. And that is why the Lord, the Father, exalted him and gave him the name that is above every other name. And he put every powers and authorities and the rulers of darkness under his feet, and gave him to be the head over the church in all things. Hallelujah. Praise God. He did the least, the most humiliating job of washing the feet of the disciples, which was, a dishonor for a Jew. He did that job. Hallelujah. उसने वो नम्रता से उस काम को किया, अपने शिष्य के पैरों को धोया. Not only that, he even touched the lepers, and they were made whole. His humbleness released his power to heal the sick. यीशु मसीह ने जो लेप्रेसी के लोग हैं, जो कुष्ठ रोग था, उनको छुआ तक, और उसकी नम्रता का कारण उसकी सामर्थ उनमें बहा और उनको चंगा किया. Hallelujah. You want to see the works of God happen through your life? You want God to exalt you? Then you humble yourself. अगर तू चाहता है कि परमेश्वर के काम तुम्हारे जीवन के द्वारा हो, तू चाहता है कि परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करे, तो अपने आप को नम्र करे. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारे नामों में श्रेष्ठ नाम दिया है, सारे नामों से ऊंचा नाम दिया है, और सारे प्रदान, सारे अधिकार, सारे अधिकार को उसके पैरों को नीचे दिया है, डाला है, और उसे कलीसिया के ऊपर शिरोमणि ठहराया गया है, और सारे बातों को उसके पैरों के नीचे डाला है. हालेलुया. प्रेज गॉड. व्हाई? The humble will be exalted, and the proud will be humiliated. Jesus was exalted, and Satan, the father of the proud, was humiliated, was brought down. If you are a man full of pride, let me say like Jesus, your father is Satan. Satan is whom you are following. Satan is whom you are imitating. अगर आपके जीवन में घमंड है, तो आप शैतान के पीछे चल रहा है, क्योंकि वो घमंडी है. उसके घमंड के कारण वो नीचा डाला गया है. Hallelujah. Today these are the norms of society. To be proud, to be egoistic is the norms of the society. If someone insults you, or someone says something evil to you, someone speaks something lie about you, immediately your friends will say, hey, why should you remain quiet? Why should you take that shit? You know what? That's the norm of society. These people are so full of pride. They want you to react. They want you to give in to pride. You don't need to react like them. You don't need to shout and yell like them. When someone says something about you and you react, that means pride is operating in you. But if you would just give them unto God, you would continue to keep yourself humble. When pride rises, sin is in action. अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा, कुछ गलत कहा, तो तुरंत तुम्हारे दोस्त या दूसरे लोग तुमसे कहेगा, तुमने क्यों उसकी बात सुनी, तुमने क्यों उसको सुनाया नहीं, तुमने क्यों उसका विरोध नहीं किया. ये अभी साधारण बात है इस सोसाइटी में, क्योंकि लोग घमंड से भरा हुआ है, और वो चाहता है कि तुम भी उनकी तरह घमंडी हो.
वो चाहता है कि तुम उसके विरोध करे, तुम भी उसको दो चार बात सुनाए, दो चार गालियां दे। लेकिन अगर तुम अपने आप को उस बीच में नम्र रखोगे, परमेश्वर तुम्हें उन्हीं के सामने ऊंचा करेगा। और जो समझता था कि तुमसे वो अच्छा है, तुमसे ऊंचा है, परमेश्वर उससे नीचे दिखाएगा। But if you exalt yourself in pride before them, you will fall. लेकिन अगर तुम अपने घमंड को तान देगा उनके सामने, तो तू भी गिरेगा। नहीं तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा, और जिसने तुम्हें नीचा दिखाया उसे परमेश्वर गिराएगा। हालेलुया। Vengeance belongs to the Lord. बदला लेना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। And let me tell you, God never misses his aim. मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का निशाना कभी नहीं चूकता है। हालेलुया। Praise God. Thank you, Jesus. So you got to submit yourself to the elders. You got to be submissive to each other. You got to be humble. You got to be kind. You got to be respectful of each other. You know, I say you give respect, you get respect, you give honor, you get honor. तुम अगर आदर करोगे, तुम्हारी आदर होगा। तुम अगर दूसरे की सम्मान करेगा, तुम्हारी सम्मान होगा। Hallelujah. And it doesn't matter if anyone respects you or honors you or not. Because we seek not the praise of man, we seek the praises of God. Hallelujah. कोई तुम्हारे आदर करे या न करे, कोई तुम्हें इज्जत दे या न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों की प्रशंसा नहीं, हम परमेश्वर की प्रशंसा चाहते हैं। Hallelujah. Praise God. So when you try to defend yourself, when you get hurt by what people say, that means still there is pride in you. जब तुम्हें बुरा लगता है या तुम्हें चोट लगता है और तुम अपने आप का डिफेंस या बताना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, और तुम उस बात को लेकर झगड़ते हो, तो भला बुरा बात कहते हैं, तो तुम्हारी जीवन में घमंड है। But I will not keep quiet. Why should I keep quiet when I am right? That's simply pride. अब तुम कहेगा, जब मैं गलत नहीं तो मैं चुप क्यों बैठूं? मैं क्यों ना कहूं कि मैं गलत नहीं हूं? मैं क्यों उसको छोड़ दूं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, उसी ने मेरे बारे में गलत कहा। ये घमंड है, ये घमंड है। And God resists the proud, but He gives grace to humble. और परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, लेकिन नम्र को वो अनुग्रह देता है। You know, people have spoken a lot of lies, a lot of evil about me, but I choose to ignore them and pray for them. That's it. You know why? Because God resists the proud. It would hinder my spiritual life. It would hinder my fellowship with the Lord. And therefore I choose not to react. Because I know one thing. You cannot expect an aroma from a swine. The swine will always stink. You cannot expect an aroma. So why fight with a swine and become like a swine? आप जानते हैं, कई लोगों ने हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे नजरअंदाज कर देता है।
क्योंकि मैंने एक बात सीखी है कि जब हम अपने शत्रु के विरोध करते रहेंगे तो वो घमंड है, और परमेश्वर घमंडियों को क्या करता है? उनका विरोध करता है। और मैंने ये भी बात सीखी है कि एक सूअर से खुशबू की अपेक्षा नहीं कर सकता है। क्या? एक सूअर से खुशबू का अपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि बदबू ही आएगी। तुम एक सूअर को कितने भी निलाए धुलाए, सबसे महंगा साबुन लगाए और फिर उसके ऊपर सबसे अच्छा परफ्यूम लगाए, इत्र लगाए, लेकिन वो दोबारा जाके चिक्कड़ में जाएंगे, संडास में ही जाएगा। आप जानते हैं एक ऐसी जानवर है वो जो चिक्कड़ में जाता है और संडास खाता है, और दोबारा तेरे पास आएगा तो बदबू ही आएगा। तुम अत्तर के या खुशबू का अपेक्षा नहीं कर सकता। तो क्यों सुअर के साथ में हम भी सुअर बने? तो भलाई ये है कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना, क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह लगेगा तो बदबू ही आएगा, है ना? उन लोगों से तरह दूर रहे, अपने अंदर घमंड आने न दे, नम्र रहे, और उसी के सामने प्रभु सही समय में तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। It says God resists the proud. Why do you want to be one resisted among your enemies? परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, तुम क्यों अपने शत्रुओं के साथ में परमेश्वर से विरोध किया जाना चाहता है? If you don't want to be resisted by God, stay humble. Let him deal with your enemies. अगर आप नहीं चाहता है कि परमेश्वर आपका विरोध करे, तो आप नम्र बना रहे और परमेश्वर तुम्हारे शत्रु का विरोध करता है। But gives grace to the humble. जो नम्र है उसे परमेश्वर अनुग्रह देता है। जो नम्र है उसे अनुग्रह देता है, जो घमंडी है उसका विरोध करता है। How many of you want grace? Because it is the grace of God that causes good things to happen to you. परमेश्वर के अनुग्रह कितने लोग चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ही तुम्हारे जीवन को बदलता है, तुम्हारे जीवन को अच्छा करता है, तुम्हारे जीवन में आशीष लाते हैं। It is the grace of God that manifests all the covenant blessings in your life. ये परमेश्वर के अनुग्रह हैं जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं तुम्हारे जीवन में पूरा करता है। But it is pride that will stop the blessings of God to flow into your life. लेकिन घमंड जो है परमेश्वर के आशीषों को तुम्हारे जीवन में प्रकट होने से रोकता है। So you better keep yourself humble. तो इसलिए आप अपने आप को नम्र रखें। The very moment you will allow pride to operate in your life, the blessings of God will stop flowing in your life. जब तुम अपने आप के जीवन में घमंड को स्थान देते हो, परमेश्वर के आशीष तुम्हारे जीवन में रुक जाती है। Hallelujah. You know, if someone says something evil to you and your sentiments are hurted, that means you are still operating in pride. You are still not mature in Christ. जब कोई तुमसे कुछ कहे और तुम्हारी भावनाओं को चोट लगती है, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर अभी भी घमंड है, अभी भी घमंड है।
and you're stopping the blessing of God in your life. There are some people, as a pastor of the church, I'm not kidding, you will have many church members fix their CCTV camera upon you. एक कलीसिया के पास्टर होने के नाते कलीसिया के जो सदस्य हैं उन्होंने तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा का निशान लगाया है. Which members you are visiting, which members are visiting you, what are you doing with them, how you are treating this one, how you are treating that one. The camera is set on you. You may not know it, but you're being under surveillance. अगर आप कलीसिया के पासवान हैं तो आपके ऊपर सीसीटीवी का कैमरा लगाया गया है. कलीसिया के बहुत सारे मेंबर्स तुम्हारे ऊपर कैमरा का निशान लगाया है. तुम किसके घर आते हो, किसके घर जाते हो, तुम किधर आते किधर जाते, किसके घर पे खाना खाने जाते हैं, किसको अपने घर पे खाना खाने बुलाते हैं, किसको तुम क्या भेंट देते हो, किसको क्या गिफ्ट देते हो, इस सभी बातों पर कैमरा लगाया है. और मौका मिलने पे चौका मार देते हैं. The moment their camera captures something, you are blasted. You know why? That is pride. That camera operator is full of pride. और जिस समय मौका मिला उस कैमरा ने तुम्हें ले लिया ना, तो फिर तेरे लिए समस्या खड़ा. क्योंकि वो व्यक्ति जिसने कैमरा का निशान में आपको लगाया है वो घमंडी है, वो घमंड से भरा हुआ है. Then they will say, you know what, pastor, you're doing partiality. फिर वो कहेगा तुम इन लोगों के बीच में पार्शियलिटी करते हो. क्या कहते हैं पार्शियलिटी को? हाँ, भेदभाव करते हो. उसे तुम ज्यादा प्यार करता है, मुझे कम प्यार करता है. उसे ज्यादा महत्व देता है, मुझे कम महत्व देता है. अरे तुम्हारे पास्टर को थोड़ा छूट दो, उसको जानने दो कि किसको किस समय में सही में जरूरत है. तुम उसे अपने गुलाम बनाने की कोशिश मत करो. उसे पवित्र आत्मा से की अगुवाई में चलने दो. और खुशखबरी यह है कि मैं किसी के बंधन में घिरने वाले में से नहीं हूं. मैं पवित्र आत्मा के चलाया चलूंगा. हालेलुया, प्रेज गॉड. वो घमंड के अपने आप को नम्र करो ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करे. हालेलुया. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर के काम हो तो अपने आप को नम्र रखो. If you want the works of God to manifest in your life, keep yourself humble. Hallelujah. It says, because God resists the proud and gives grace to the humble, therefore humble yourself under the mighty hand of God. क्योंकि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है और जो नम्र है उसे ऊंचा करता है. इसलिए तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे नम्र करो. हालेलुया, हालेलुया. You know why I say, let God's hand be this way on your life. Let it not come this way. Okay? मैं कहता हूं कि परमेश्वर के हाथ तुम्हारे जीवन में हमेशा ऐसे रहे कि परमेश्वर के आशीष तुम्हारे और बहती रहे. परमेश्वर के हाथ ऐसा ना हो
कि वो तुम्हें रोके। हालेलुया। So this is what humbleness will do. He'll give you more grace. But when you allow pride into your life, God will resist you. जब तुम अपने आप को नम्र करते तो परमेश्वर तुम्हें ऐसा उदारता से देता है, अनुग्रह देता है। लेकिन जब घमंड को स्थान देगा तो परमेश्वर ऐसा करता है। Hallelujah. Praise God. Then the Bible says that He may exhort you in due time. Hallelujah. The time is coming when God will exalt you. परमेश्वर का यह कहता है कि सही समय में परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। वो समय आ रहा है तुम्हारी ऊंचा करने की, जब परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। Hallelujah. And then it says, cast all your cares upon Him. Hallelujah. फिर कहता है अपने सारी चिंता, अपने सारे बोझ उसे दे दो। For He cares for you. क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। I love that. If you are not casting your cares to God, if you are trying to help God, then you are full of stinking pride. अगर तुम अपने चिंता, अपने समस्याएं परमेश्वर को नहीं देता है, यीशु मसीह को नहीं देता है, तो तुम घमंड से कोट कोट के भरा हुआ है। You know, I have a lot of problems, Pastor. But I don't want to trouble God with all my problems. I only want God to help me in this one problem, with this one issue. You are so full of pride that God will not be able to help you with that one issue also. He says, cast all your cares. And you are saying, I'm going to give 99. Let God help me with one. You are so full of pride, you think that you can deal with the 99. In other words, God cannot deal with your 99 problems, but this one is easy for Him to deal with. You are stupid, man. Full of pride. कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहूं पास्टर, मेरे ना बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे समस्याएं पास्टर, लेकिन मैं परमेश्वर को तंग नहीं करूंगा मेरे समस्याओं से। केवल ये एक समस्या जो है ना, परमेश्वर ने मेरे लिए दूर करना चाहिए। आप घमंड से कूट कूट के भरा हुआ है। तुम ये कह रहे हो कि मेरे 100 समस्या में से मैं 99 को देख लूंगा, एक समस्या परमेश्वर मेरी मदद करे। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जो 99 समस्या है परमेश्वर उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन ये आसान है, परमेश्वर इसको पूरा करे। अरे तुम मूर्ख है। परमेश्वर कहता है सारी समस्या मुझे दे दो। God says, cast all your cares. How many cares? All your cares. परमेश्वर कहता है सारी समस्याएं। अगर कोई भी ऐसी समस्या है और तू समझता है कि समस्या को तू दूर कर सकता है, तू घमंडी है। Isn't it? If you think that there is even one issue, one problem that you can solve in your own strength, then you are proudy and God resists you. God wants you to come with all your cares to Him, for He wants to swallow them for you. He wants you to be humble enough
and come and say, Dad, deal with this. Now I want to tell you, your father will never fail. तुम्हारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि तुम सभी समस्या को उसके पास लेकर आए और उससे कहे, प्रभु इसे दूर करो, और वो करेगा. You know the reason you have so many issues. Let me be frank with you. The reason you have heaps of problems, the heaps of issues, is because you never brought it before God. So they started piling up. Because you were trying to deal it with your own strength, and now they have become mountains of issues, mountains of problems. But still your pride has not gone. Bitterness is began to raise against God. You stupid, you are the one that collected the mountains. And now you have developed bitterness unto God. Even that bitterness unto God is your pride. तुम जानते हैं क्यों मुसीबत के पहाड़ तुम्हारे जीवन में आ चुका है? क्योंकि जब पहला मुसीबत आया, तुमने सोचा है इस मुसीबत को मैं दूर करूंगा. तुमने उसे परमेश्वर के पास नहीं लेकर आए, और ऐसे करते करते तुमने मुसीबत के पहाड़ जमा किया है. और अब जब मुसीबत के पहाड़ तुम्हारे जीवन में जमा हो चुका है, तुम परमेश्वर की ओर कड़वाहट पैदा कर दिया है. अरे मूर्ख, ये पहाड़ तुमने ही खड़ा किया है, परमेश्वर को क्यों दोषी ठहराते हो? तुमने अगर ये सारी समस्या परमेश्वर को दिया होता तो समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं होती. ये तुम्हारी घमंड के कारण अब पहाड़ खड़ा हो चुका है. जब पहली मुसीबत आती है, एक छोटे बच्चे की तरह अपने पिता के पास आओ, वो तुम्हारी समस्या दूर करेगा. लेकिन अगर तुम घमंड करोगे और कहेगे इस मुसीबत को मैं दूर कर सकता हूं, नहीं 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 नहीं, वो मुसीबत के पार होएगा और फिर तो अपने आप को परमेश्वर से अधिक दूर करेगा. परमेश्वर घमंडी को विरोध करता है. God resists the proud. You got to humble yourself before God. अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करो. Hallelujah. In closing, I want to touch something. The series doesn't shut here. It doesn't close here. It doesn't end here. But in closing this message, I want to touch on something. Are you experiencing delays in your prayer? Answers to your prayer. Are you fasting and praying and crying and mourning, but still your prayers are not granted? It's because of your pride in your prayer. It's because of your pride in your fasting. If you think that your fasting and crying and praying is going to achieve something from God, it's not. You are full of pride, trying to achieve something from God based on your religious stinking practices. क्या तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई प्रार्थना है जो लंबी समय तक तुम्हें जवाब नहीं मिला है, और तुम उसके लिए रो रो कर प्रार्थना करते हो, तुम उपवास प्रार्थना कर रहे हो, और फिर भी तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उसमें घमंड भरा हुआ. Your fasting is full of stinking pride. Your crying and praying is of stinking pride. You are trying to achieve mileage through your prayers and fasting before God, and God resists you. That's pride. I am going to fast and pray. I am going to cry and pray, and God is going to answer my prayer. That's stupid, stinking pride. God is resisting you because of that kind of prayer. क्या आप उनमें से हैं
जो कहते हैं कि मैं रो रो के प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा या मुझे ये आशीष देगा। तो मैं कहता हूं, तुम्हारी ऐसी उपवास प्रार्थना घमंड से भरा हुआ है तू, और तुम्हारी ये करने से परमेश्वर के नाकों में तेरी बदबू पहुंच रही है, तेरी घमंड की। क्योंकि तू अपने आशीषों की कीमत चुकाने की कोशिश कर रहा अपनी घमंड से, कि अगर मैं उपवास प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। ये तुम्हारी जो स्वभाव है, ये जो तुम्हारी मानसिकता है, ये ना परमेश्वर के नाकों में गंदा बदबू है, गंदा बदबू है। अपने आप को नम्र करो और मांगो तो मिलेगा। Humble yourself before God and ask and you will receive. God doesn't need your fasting, you stupid. God doesn't need your crying. You cannot pay the price. The blood of Jesus is enough. परमेश्वर को तुम्हारा रोना और प्रार्थना रो रो के करना, उपवास करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है मूर्ख। यीशु मसीह के लहू पर्याप्त है, यीशु के लहू पर्याप्त है। तुम्हारी प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम घमंडी हो। तुम्हारे उपवास रो रो कर प्रार्थना करने के बावजूद तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि तुम घमंडी हो। परमेश्वर तुम्हारा विरोध कर रहा है। अपने आप को नम्र करो और कहो, पिता मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु मैं अपने आप को तुम्हारे सामने नम्र करता हूं। यीशु के नाम में प्रभु मेरी समस्या को दूर करो। Humble yourself before God and say, Lord, I cannot do anything. I'm not an expert at prayer. I'm not an expert at prayer. I don't know, Lord, what to do, but I know only you can do. So I humble myself before you. I'm not here to earn my blessing. I'm come to receive it, for it's been paid by the blood of Jesus. And that's how you humble yourself before God. Stop all this nonsense of fasting and prayer to receive anything from God. It's thinking in the nostrils of God. Some people say, I fasted 40 days and God gave me. No, somebody else prayed by faith for you. You received it because that came to a point where you began to believe. It's not because you're fasting and praying. Jesus never fasted and prayed. Hallelujah. You prove me wrong. I say Jesus never fasted and prayed to receive anything from God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर पिता से कुछ प्राप्त करने के लिए उपवास प्रार्थना नहीं किया। Praise God. So would you humble yourself? The reason you don't receive things, the blessings of God in your life, you don't receive prayer, answers to your prayer because of pride. And you're boasting in your own works, religious works. वो कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में प्रभु के आशीष नहीं आ रही है, या तुम्हारी प्रार्थना का तुरंत जवाब नहीं मिलता है, या देरी लगती है तुम्हारी प्रार्थना के जवाब के लिए। वो इसलिए कि तुम घमंड से भरे हुए हो। तुम परमेश्वर के सामने अपनी घमंड न दिखाए, लोगों के सामने अपने घमंड न दिखाए, क्योंकि जो ऊंचा अपने आप को करेगा वो नीचा गिरा जाएगा। Now let me close with this statement. God cannot humble you, He can humiliate you. मैं इस वाक्य के साथ में बंद करना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें नम्र नहीं कर सकता है, परमेश्वर तुम्हें शर्मिंदा कर सकता है। The Bible says you got to deal with pride in your life. God will not deal with it. If God deals with pride in your life, you will be humiliated. You
got to humble yourself. God will not humble you. तुम्हें अपने आप को नम्र करना है, परमेश्वर तुम्हें नम्र नहीं करेगा. God cannot humble you, he can humiliate you. परमेश्वर तुम्हें नम्र नहीं कर सकता, तुम्हें वो शर्मिंदा कर सकता है. Come on. But if you humble yourself, God will exalt you. लेकिन अगर तुम अपने आप को नम्र करेगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. So never pray this prayer that God humble me. तुम कभी भी ऐसे प्रार्थना मत करो कि परमेश्वर मुझे नम्र करो, because in that prayer is stinking pride. You have to humble yourself. God cannot humble you. कभी भी ये प्रार्थना नहीं करो कि परमेश्वर मुझे नम्र करो, उसमें तेरी घमंड की बदबू आ रही है. तुम्हें अपने आप को नम्र करना है. हालेलुया. और परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा. I trust that you are blessed even though your ego may be hurt. Praise God. मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हो गए. हो सकता है तुम्हारा गुरूर को, तुम्हारा घमंड को चोट लगी है, लेकिन यह प्रभु है जो तुमसे बात कर रहा है. But it's God speaking to you because God wants to exalt you, wants to give you more grace. Amen. God bless you. Hallelujah. Praise God. If there is anyone here who God has touched your heart, I want you to pray this prayer before the Lord. Humble yourself. Ask forgiveness for your pride. Because I know we all have missed somewhere. आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, नम्र करो उसके हाथों में और लोगों के सामने. हालेलुया. और पश्चाताप करो अपने जीवन में घमंड के लिए, और अपने आप को नम्र रखना, और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा. हालेलुया. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड गॉड. आओ हम प्रार्थना करेंगे. Yes, Father God, I acknowledge that I have given place to pride in my life. पिता, मैं इस बात की कबूली करता हूं कि मैंने अपने जीवन को घमंड को स्थान दिया है, गुरूर को स्थान दिया है. प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करता हूं आपके हाथों के नीचे और लोगों के बीच में. पिता, मैं अपने घमंड के लिए क्षमा मांगता हूं. और पिता, मैं अपने आप को नम्र करता हूं. और धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में तेरी अनुग्रह अब मेरे जीवन में बहने लगी है. Father, I humble myself before you and before man. I ask forgiveness for operating in pride. Thank you for forgiving me. I receive my forgiveness. And thank you for the grace that you have released once again in my life. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you.